Hello everyone. I'm Dr. Ahtesham from Sage University, Bhopal, going to teach you the basic structure of C language. Today topic is, basic structure of C program and character set, tokens, identifiers in C. Well, as we know, while writing program in C language, we should know some basic things of programming languages like documentations, preprocessor statements, global declarations, the main function, local declarations, program statements and expressions, user-defined functions. So these things are very important to know before starting writing program in any language. So here I'm going to tell you the C program structure. Um, Here I have given you practical example of C program structure. You can see in the heading of the program, or you can say the beginning of the program, I have written some information about program like author, all right, and date, description. So all these things I have put into block comments. You can see these marks. Okay, these are the block comments marks which you can use for giving the block comments, and block comments always given in the heading of the program. This is the normal practice of programmer. Now I start with the first line of C program, that is hash include stdio.h. This line starts the program of C language. In every program, it is very important because this is the preprocessor hash include preprocessor, and it processes this header file before starting or reading the program. And this is a standard input output header file which is used to receive input and display output on console. Integer main function. This function is very important in C language. This is the main function, or you can say a driver code is written in this function because this main function will drive the whole program of C language. And after writing int main, int is a data type. Here you have to declare what type of data, what type of function it would be, and returning the data. So यहाँ पर हमने int दिया है, इस function को int लिया है, and we started opening curly braces. This is the body of your main function, and in this main function body you will write your all the statements which can be run. Here I have given simple one statement, printf hello world. So this statement will print this message on the screen. It is very easy. And after writing this statement, I have given terminator semicolon, or you can say statement terminator. This is the rule of C language. Whenever you finish your statement, you have to put terminator, statement terminator, that is called semicolon. And after writing or finishing your first statement, write in the next statement, return 0. Here, this function will not return any value, that is 0. All right, and this statement is finished here. Again, I have given terminator. So this is the basic structure of C programming language. Hope you will understand it. Okay, when you execute this program with the help of menus, compile and run, you will get this output, hello world. So here, this is all about your first program in C language, how you have to write. You can use compiler, okay, and write this program in a code window and execute it with the help of compile option and run option. Make sure that whenever you make changes in your code, you have to compile your program again. Character set. In C program, we use some characters which are given on your keyboard. The basic C source character set includes the following characters. यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कि अल्फाबेट है A to Z स्मॉल लेटर्स में एंड A to Z कैपिटल लेटर्स में. ये अल्फाबेट्स आप यूज़ कर सकते हैं आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर. डेसिमल डिजिट्स लाइक 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं. ग्राफिक कैरेक्टर्स, ये मैंने कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं. इसके अलावा भी यू हैव गॉट सो मैनी कैरेक्टर्स ऑन योर कीबोर्ड. सो
उन कैरेक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब कैरेक्टर्स का कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग है। सम ऑफ देम आर स्पेशल कैरेक्टर्स, सम ऑफ देम ऑपरेटर्स, दे बिहेव लाइक ऑपरेटर्स। इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, फॉर्म, फीड, न्यू लाइन, ये वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आते हैं और इसको भी यूज़ करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम कोड को लिखने के लिए। न्यू लाइन इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ टेक्स्ट लाइन। न्यू लाइन एक कैरेक्टर होता है जो कि आपके एक लाइन का एंड, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको इंडिकेट करता है, दिस इज द एंड ऑफ द लाइन। इट नीड्स नॉट करस्पॉन्ड टू एनी एक्चुअल सिंगल कैरेक्टर, ऑल्दो फॉर कन्वीनियंस सी ट्रीट्स इट एज वन। एंड रिजर्व वर्ड्स, तो ये कैरेक्टर सेट में सभी आते हैं, रिजर्व वर्ड में डिस्कस करेंगे लेटर। बट रिजर्व वर्ड्स को मैं बता दूं, वो वर्ड्स होते हैं जो सी के यूज़ के हैं, सी लैंग्वेज के यूज़ के हैं और वो वर्ड्स सी के लिए रिजर्व्ड हैं। उन वर्ड्स को हम अपने प्रोग्राम के अंदर एज यूज़र सेट में या यूज़र वेरिएबल में या नेम ऑफ अ फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये रिजर्व वर्ड्स सिर्फ सी के लिए होते हैं। आगे इसको हम देखेंगे, इसका पूरा चार्ट है हमारे पास। सी टोकन्स, in C programs, each word and punctuation is referred to as a token. C tokens are the smallest building block or smallest unit of C program. The compiler breaks the program into the smallest possible units and proceeds to the various stages of the compilation, which is called token. तो जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारा कंपाइलर होता है वो हर अपने कोड को स्मॉल स्मॉल पॉसिबल यूनिट्स में ब्रेक करता है। तो वो जो स्मॉल यूनिट्स बनते हैं उनको टोकन्स रेफर किया गया है। और इस टोकन्स के अंदर क्या क्या आते हैं? सी सपोर्ट 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स: आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स। इसे हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर और कंपाइलर इन सबको ना ब्रेक करता है अपने 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 अकॉर्डिंग और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फर्स्ट जो अपने पास टोकन है वो है आइडेंटिफायर्स। ये क्या होता है? इन नेक्स्ट स्लाइड्स आई विल लेट यू नो। Identifiers. Identifiers are names given to different entities such as constant, variables, structures, functions, etc. Simply मैं सर कहूँगा very simple words में, जो हम नाम देते हैं अपने एंटिटीज़ का प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि कांस्टेंट को हमने कोई नाम दिया या कोई वेरिएबल्स को नाम दिया या हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, यूनियन डिफाइन किया या फंक्शन डिफाइन किया है, इसको हम अपना यूज़र का नाम देते हैं तो उनको आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम दिया हमने तो उस नाम से वो वेरिएबल आइडेंटिफाई किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे कि आप मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पर इंट अमाउंट। सो अमाउंट ये यूज़र ने एक वेरिएबल नेम दिया है, तो ये जो वेरिएबल नेम है अमाउंट, ये वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इज एन अमाउंट वेरिएबल, तो ये आइडेंटिफायर कहलाएगा। इसी तरह से हमने दिया है डबल टोटल बैलेंस, तो ये जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं इनको आइडेंटिफायर कहा गया है। इसी तरह से हम फंक्शंस के नाम, स्ट्रक्चर्स के नाम, यूनियंस के नाम, कॉन्स्टेंट्स के नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं। In the above example, amount and total balance are identifiers and int and double are keywords. रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स मीन्स किसी भी आइडेंटिफायर को देने के लिए यहाँ पास कुछ रूल्स है सी के अंदर, उन रूल्स को फॉलो करना होता है तभी आप किसी भी आइडेंटिफायर का नाम दे सकते हैं। एंड आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, मीन्स जो भी आप नाम देंगे उसमें अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर होगा। ए टू जेड मीन्स स्मॉल अल्फ़ाबेट्स एंड ए टू जेड कैपिटल मीन्स अपर केस में, एंड 0 to 9 डिजिट्स। एंड अंडरस्कोर एक सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर्स नेम्स मस्ट बी यूनिक, मीन्स अगर आपने एक नाम आइडेंटिफायर का दे दिया है तो उसको दोबारा आप नहीं दे सकते उसी प्रोग्राम में, इसलिए यूनिक होना चाहिए। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा आइडेंटिफायर का या तो इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट हो या अंडरस्कोर, उसके अलावा आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते फर्स्ट कैरेक्टर में। अगर आप चाहेंगे कि वी स्टार्ट विथ डिजिट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड एज आइडेंटिफायर, हम कोई भी कीवर्ड जो सी के कीवर्ड रिजर्व वर्ड से उनको एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर हमने यूज़ किया है इंट, इंट इज़ अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड ऑफ सी लैंग्वेज, ये दीज टू है, डबल भी है, तो इन दोनों को
या इस तरह के कीवर्ड्स को हम एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ओनली द फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। ये लेंथ बताई गई है कि अगर आप 50 कैरेक्टर्स का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फंक्शन का नाम, तो 31st कैरेक्टर सिग्निफिकेंट होंगे, उनका सिग्निफिकेंस होगा प्रोग्रामिंग में, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनका सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, मीन्स इसमें स्पेसेस नहीं आना चाहिए। आप अमाउंट जुलाई अमाउंट लिखना चाह रहे हैं तो जुलाई और अमाउंट के बीच स्पेस नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, मीन्स अगर आपने कोई भी आइडेंटिफायर कैपिटल लेटर में दिया है और उसी स्पेलिंग का, उसी सेम नाम का आइडेंटिफायर स्मॉल लेटर में दे रहा है, दोनों अलग और डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे। इट मीन्स कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट इन सी लैंग्वेज। आइडेंटिफायर का हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट अपने प्रेजेंटेशन में। Reserved words. Reserved words, also known as keywords, which are the words that cannot be used for any purposes other than those for which they are predefined. Means इसमें जो words हैं उनके particular purposes हैं, सिर्फ उन्हीं purpose के लिए हम use कर सकते हैं, और इसके अलावा उनका कोई दूसरा पर्पस या दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और उनका जो भी मीनिंग है, पर्पस है, वो प्रीडिफाइंड है। एग्जाम्पल्स रिजर्व वर्ड्स के ऑटो, ब्रेक, केस, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट। तो इस तरह से मैंने कुछ रिजर्व वर्ड्स अपने स्लाइड्स पे रखे हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ये वर्ड्स हैं जिनको हम एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। Variables and data types. Variables are memory locations, storage area in the C programming language. Variables हम लोग memory locations को occupy करने के लिए declare करते हैं। ये storage area होते हैं variables. We give the name to particular memory location, और ये data को store करते हैं memory में। The primary purpose of variable is to store data in memory for later use. Unlike constant, which do not change during the program execution, variables value may change during execution. तो constant और variable में यहाँ पर एक छोटा difference अभी बताया है कि variables में जो value आप store करते हैं वो program के दौरान during execution of program value change हो जाती है, but constant की value change नहीं होती। Declaration of variables आप देखेंगे यहाँ पर मैंने syntax दिया हुआ है। सबसे पहले आप लिखेंगे डेटा टाइप, किस टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, और उसके बाद वेरिएबल का नाम। इसी तरह से आप लिस्ट ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम 1, वेरिएबल नेम 2, वेरिएबल नेम 3। तो अगर आपको 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो आप यहाँ पर डेटा टाइप दीजिए उसका, वेरिएबल नेम 1, वेरिएबल नेम 2, वेरिएबल नेम 3। इस तरह से आप लिस्ट ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है हमने विड्थ, और दूसरा हाइट, और टाइप कर दिया है इंटीजर, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग है ये। और यहाँ पर हाइट इक्वल टू 5, इसका मीन्स क्या है, हमने 5 वैल्यू इनिशियलाइज करी है हाइट में, और हाइट में जो वेरिएबल, जो हाइट वेरिएबल है उसमें वैल्यू कितनी है, 5 है। खैर, हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, उसका नाम दिया लेटर, उसमें एक कैरेक्टर हमने असाइन कर दिया है, तो लेटर में की वैल्यू क्या है, ए। फ्लोट, फ्लोट को हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, एज एंड एरिया। इसी तरह से डबल, डी। तो ये जो हम लोगों ने इंट, कैर, फ्लोट, डबल लिया है, इसका मीन्स है कि हम लोग इस टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और दीज इंट, कैर, फ्लोट, डबल आर कॉल्ड data type in C. We will discuss it later in later classes. Assignments of variables. A variable assignment is a process of assigning a value to a variable. Assignments of variable का मतलब क्या होता है कि हम variables को कोई value store करें variables के अंदर। तो जैसे हमने पहले भी आपको दिखाया, height equal to 5, हमने एक value assign कर रखी है। इसको फिर से हम देखेंगे as an example कि integer width 60, इट मीन्स विथ में हमने 60 असाइन कर दी वैल्यू। सिमिलरली इंटीजर एज 31, इट मीन्स एज में हमने 31 असाइन कर दिया। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स जो हमने
एज एन आइडेंटिफायर पढ़े थे, सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स ए टू जेड, लोअर केस लेटर्स ए टू जेड, डिजिट 09 एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर। ये हमने पहले भी देखा था, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में ए टू जेड आप लिख सकते हैं, 0 to 9 अंडरस्कोर आएगा। फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वेरिएबल का, या तो वो लेटर हो सकता है इंग्लिश का या अंडरस्कोर। ब्लैंक स्पेसेस उसमें नहीं आएंगे, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा अंडरस्कोर के अलावा। सी के कीवर्ड्स उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंट। Values of the variable can be numeric, alphabet. Values of the variables can be numeric और alphabetic। आप values variable के numeric भी हो सकती हैं, alphabet भी हो सकते हैं। Variable type can be char, int, float, double और void। इस तरह के आप type declare कर सकते हैं। So this is all about from my side, and please do like and share sageuniversity.edu.in. Okay.